Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National. So, if we see at the performance of candidates of third shift today, we find third shift was also tough. Number of attempts are also low. Some candidates are sad due to low attempts. In the third shift, I am seeing the range 43 to 55 most candidates. Very rarely below 43 and very less above 55. That means any candidates who has performed in this range is still in race. Still in race. I am getting many messages also. Sir, I have only attempted 48, 49. I am very upset. There is no need to be upset. There is absolutely no need. When exam is tough, everybody has done less attempts. The game is open for everyone. Don't swayed by some casual remarks in social media that exam is easy. No. By any yardstick, this exam cannot be called easy, even moderate. It is a tough exam. And since it is tough, it will push down the cutoff too much as compared to last year. What will be the likely cutoff, that we will analyze after all the shifts are over by Saturday. But I am giving some sense that even if you have attempted low, don't get discouraged and don't waste your time. You should immediately re-energize and focus on mains. Otherwise, you will repent. When result will come, you may be thinking, I will not clear, but you may clear. At that time, there will be no time left to prepare for mains. So my simple advice is, re-energize yourself, prepare for mains. I have already advised you that after taking 1 or 2 hour rest, read current affairs. For current affairs, I have given you a very good source. Link is available in description and comment column. Click the link, you will land up on an app. Download the app, take 2021 plan, apply coupon code AA03, you will get 10% off. From there, you should first cover June current affair, then May, then April, and then come back to the July current affair. You have to cover the current affair up to September. So don't waste your time. Immediately start reading current affairs and watching banking, financial and economic awareness videos, because from now on we will not only be preparing for we will start preparation for interviews also side by side. Because it is difficult to prepare for interviews thereon. So some time we will devote to strengthen the areas that will help us in interviews also, so that you are on a track to get the job. As far as mains is concerned, from today I will start this series, how you should prepare for IBPS RRB mains. Follow that strategy, take the mock test suggested by me. Link is available in description and comment column. Click the link, register your particulars and take half yearly, yearly plan. You must have seen the comments of various people. Those have complimented me for suggesting such a good mock test. So if you have not taken this mock test till now, it is the time when you should subscribe it and take benefit like so many candidates. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. थर्ड शिफ्ट के बारे में भी कमेंट्स आ गए हैं और यह शिफ्ट भी टफ रही है. मैंने जब लोगों के ऑब्जर्व किए कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, तो थर्ड शिफ्ट में जो परफॉर्मेंस है वो पहले 2 शिफ्ट से भी थोड़ी सी नीचे ही आ गई है. यहाँ पर रेंज निकल के आई है 43 से 55 की.
और कुछ लोग 43 से भी नीचे हैं और बहुत कम लोग 55 से ऊपर हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि इस बार कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले नीचे जाने वाला है। तो जो लोग सोशल मीडिया में मजाक में ये बातें कर रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत आसान था या मॉडरेट था, वो किसी का हित नहीं कर रहे। वास्तव में एग्ज़ाम टफ था। अक्रॉस द बोर्ड कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस लो है, पर चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि अगर सबकी परफॉर्मेंस लो है तो कट ऑफ भी लो होगा। तो अगर आपकी भी परफॉर्मेंस लो है तो आपने डिस्करेज नहीं होना है। आप रेस के अंदर हैं और रेस में बने हुए हैं। क्या लाइकली कट ऑफ होगा ये हम शनिवार को मास्टर वीडियो डालेंगे, सारे शिफ्ट पूरे होने के बाद। आज टोटल 4 शिफ्ट है और संडे को भी 4 शिफ्ट है। पर अभी तक का जो अनुमान बन रहा है वो ये बन रहा है कि जिनकी कम परफॉर्मेंस भी है वो पूरी तरह से रेस में है। बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, लोगों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि ये गलतियां काफ़ी बार लोग करते हैं। पहले उनको लगता है कि एग्ज़ाम पास नहीं होगा, पढ़ाई छोड़ के बैठ जाते हैं, फिर रिज़ल्ट आता है, वो पास हो जाते हैं और फिर हाथ पैर फूल जाते हैं कि अपने इतने कम दिनों में मेन की तैयारी कैसे करें। तो बिल्कुल भी आपने निराश नहीं होना है। ये चैनल है राइट एडवाइस एट राइट टाइम। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि कट ऑफ लो होगा तो वास्तव में ही लो होगा। जो लोग पुराने हैं, जिन्होंने इस चैनल को कई सालों से देखा है, उनको पता है कि जो यहाँ बताया जाता है वो बिल्कुल ऐसा होता है जो सटीक ही निकलता है। तो इसलिए जो अभी तक का मेरा अनुमान है, जो लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जो मैं आपके अटैम्प्ट्स देख रहा हूँ, और मैं हमेशा इस चैनल पे कहता हूँ अपने सच्चे अटैम्प्ट बताइए, शर्माइए मत। कोई हवाबाजी कर रहा है वो हम देख लेंगे, पर आप अपने सच्चे अटैम्प्ट बताइए ताकि हम एक अच्छी असेसमेंट कर सकें, सही सलाह दे सकें और आपको नौकरी दिलाने में मदद कर सकें। तो मेरा अनुमान ये है कि जिनके कम भी अटैम्प्ट्स हैं उनको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो रेस के अंदर हैं, उनको मेन की पढ़ाई करते रहना चाहिए। इस चैनल पे हम आपको मेन की पढ़ाई भी कराएंगे आज के बाद, और इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ कराएंगे, ताकि पिछले वर्षों की भांति इस साल भी हमारे अधिक से अधिक कैंडिडेट सेलेक्ट हो। अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद करंट अफेयर पढ़नी शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर का अच्छा सोर्स मैंने आपको बता दिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक को क्लिक करिए और एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को रजिस्टर करिए, करंट ईयर का प्लान ले लीजिए और कूपन कोड A803 लगा लीजिए, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से आप करंट अफेयर पढ़नी शुरू कर लीजिए। पहले आप जून की पढ़ लीजिए, फिर मई की, फिर अप्रैल की, और फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में मेन एग्ज़ाम है, उसकी हमें तैयारी अभी से करनी है। आज शाम को पहली वीडियो कैसे IBPS RRB ऑफिसर मेन की तैयारी करनी है ये मैं डालूंगा, उसको आपने फॉलो करना है। अच्छा मॉक टेस्ट मैंने आपको सजेस्ट किया है, मेन के लिए उस मॉक टेस्ट का हम इस्तेमाल शुरू कर देंगे। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको क्लिक करिए, रजिस्टर करिए और एनुअल या हाफ ईयरली प्लान ले लीजिए, आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, हज़ारों लोगों ने इसको इस्तेमाल किया और आज आपने देखे होंगे लोगों ने काफ़ी कम्प्लीमेंट किया है कि सर आपके बताए मॉक टेस्ट से हमें आज के एग्ज़ाम में फ़ायदा हुआ। एग्ज़ाम क्योंकि मॉक टेस्ट का लेवल पहले से ही टफ़ था और एग्ज़ाम भी टफ़ आया, तो हम वहाँ पर घबराए नहीं और हम अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम तैयारी करते रहते हैं और इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो हम कामयाब ज़रूर होंगे। और इस चैनल पर राइट एडवाइस एंड राइट टाइम दी जाती है। जो भी आपको बातें बताई जाती है ज़मीनी हकीकत के अनुसार बताई जाती है, क्योंकि लाखों की तादाद में हमारे सब्सक्राइबर हैं, अच्छी तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमेशा मैं सबको यही कहता हूँ कि आप जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो बताइए, घबराइए मत। कोई हवाबाजी कर रहा है, कर लेने दीजिए उसको, आप सच बोलिए, क्योंकि हम पहचान लेते हैं कि कौन इसके अंदर जेन्युइन है, कौन नॉन जेन्युइन है,
और जेन्युइन के बेसिस पे ही हम एनालिसिस करते हैं। लाखों आदमी में कुछ लोग तो ऐसे होंगे ही जो हवाबाजी भी करते हैं, तो उसको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। इतना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कमेंट की लैंग्वेज पढ़ के ही जान जाता हूँ कि ये आदमी कितने पानी में है। तो आप निश्चिंत रहें, आपको बिल्कुल सही, सीधी और सटीक मैं सलाह दे रहा हूँ। आपके अगर अटैम्प्ट कम हुए हैं, निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आशावान रहिए, आप रेस में हैं और मेन की तैयारी करिए, क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है, कई बार ऐसा हुआ है। एक बार स्टेट बैंक जूनियर एसोसिएट का एग्ज़ाम था, मैंने उसमें बताया कि कट ऑफ लो जाएगा। लोगों ने बहुत डिस्कशन की उसके ऊपर, और कर्नाटका में वो लोग गया जिन्होंने मेरा कहना माना था, तैयारी करते रहे थे, आज वो स्टेट बैंक में नौकरी कर रहे हैं। जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे, उन्होंने बाद में रिपेंट भी किया। कई लोगों ने ये माना भी कमेंट लिख के कि सर हम आपका कहना मान लेते तो आज हम भी बैंक में होते। देखो, हमारा काम है सच बात बताना, मानना ना मानना आपके ऊपर है। मान लेंगे आपका ही फ़ायदा होगा। अब मेरा तो इसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, मैं तो अपनी नौकरी कर चुका हूँ और अपना जीवन का जो भी सफ़र था कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मैं तो जो जो मुझे इस दुनिया ने दिया, जो जो इस दुनिया ने सिखाया, वो आपको वापस दे रहा हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि उसमें से कितना आप रिसीव कर लेते हैं, उसको कितने का फ़ायदा उठा लेते हैं और कैसे अपने कैरियर को बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। मेरा काम है फ्री फ्लो में मैं बोलता हूँ, कोई पहले से मैं लिख के नहीं रखता हूँ, एक्स टेम्पो में बात करता हूँ, अपने मन से बात करता हूँ और बिल्कुल सटीक बात मैं आपको बताता हूँ जो आपके जीवन में आपकी मदद करता है और आपको आगे ले जाने में सहायता करता है। गॉड ब्लेस यू।